Shanti, and welcome to this special interaction, this special dialogue, which is a part of this beautiful retreat that's going on since the past almost 2 days. Experience, energize, and empower. So let me ask you, how many of you have been already attending the retreat? How many of you have already been attending the retreat? Okay. And how many of you have joined just today? Okay. आज ही join किया है just today. Okay. So welcome. जो पहले से यहाँ retreat कर रहे हैं, उनका तो हर घड़ी स्वागत है ही, और जो आज यहाँ पहुँचे हैं उनका आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है. So Brahma Kumaris, as it is popularly known as, this organization was established in 1936 और इतने वर्षों में 88 वर्षों में इस संस्था ने हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं. भले ही आध्यात्मिक नेचर की ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड वी एज स्पिरिचुअल बीइंग्स आर इन्वॉल्व इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. हम में से मेजॉरिटी तो आईटी क्षेत्र में है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, और ना भी देते हो तो भी आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो बाकी सब क्षेत्रों को सपोर्ट करता है. तो एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन सर्विंग एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड स्पिरिचुअलिटी heals and nurtures that spiritual being. Ultimately, its effect are spread in all sections of the society. हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाना है. डाली तो उसमें वही खाद जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो हर चीज़ से बेस्ट लेकर के आपको क्या देता है? खुशबू, रूप, रंग, सुंदरता, नेक्टर. तो ऐसे ही हम ये नहीं एज लीडर्स, हम ये ना कहें कि हमें मिला ही ऐसा, लेकिन एज लीडर्स जो भी हमें मिला है उस चीज़ का हमने आगे क्या किया. तो इस वर्ष ब्रह्मा कुमारीज की हर वर्ष की हमारी एक थीम होती है, और इस वर्ष की हमारी यही थीम है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज. हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के लिए, निजी एट आवर पर्सनल लेवल, हमारे निजी स्तर पर भी, एट आवर फैमिली लेवल, एट आवर प्रोफेशनल फ्रंट, एंड एट द ग्लोबल लेवल. हर चीज़ कैसे परिवर्तन तो हो रही है. इतने सालों में हमने देखा, ना चाहते हुए भी ये परिवर्तन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतनी मेहनत से यही मिला. हर कोई मेहनत तो करता है पॉजिटिविटी के लिए, बेहतर करने के लिए. एक चीज़ बेहतर होती है, लेकिन हम जब ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर एक छोटे लेवल पे हर चीज़ बेहतर हो रही है तो ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं हो रही? आपको लगता है? हमारे लेवल पे हमने बहुत अचीव किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने बहुत अचीव किया, फैमिलीज़ में बहुत अचीव किया, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स देखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो कहाँ गई वो अचीवमेंट्स? उनका इफेक्ट ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है. देयर इज सम मिसिंग एलिमेंट समवेयर. Somewhere these individual contributions are not making that impact at the global level that they should be making, which makes us think, are our efforts going in vain, or are they not directed towards where they should be? So coming together as thinkers, coming together as influencers, coming together as people who really make change, who are eager to make change, this is a platform today where we will think about these aspects. How can our contributions
make the global scenario better? What is our role? And if we have to fulfill this role, what is it that I need? Let us all together think about this in a direction. And for this, we have a structure through which we will be able to listen to your thoughts, your valuable inputs, so that each one of us in this hall today can generate new ideas towards positive change. So, the theme of the discussion is possibilities for a positive change. We don't promise that yes, after this dialogue things will change, but let us take the first step of at least exploring the possibilities and understanding what do these possibilities cost us and how can spirituality help us to pay that cost. And I hope with this context we all must be very eager to know more ideas and also to share our ideas. So we have this platform where you can access the mics kept in front of you very easily as and when required. But before we begin with this dialogue today, let us have a brief introduction of each one of us who's present over here. So you can always sit, I mean, you're already sitting with people. I hope you're not sitting with anybody whom you've come with. And if you are, you can just stand up, move around, look for a person whom you don't know, and introduce yourself with a positive value that starts with the first alphabet of your name. So, if my name is Vidhatri, what value do I see in myself? That starts with V. It is better if you choose a value that starts with your first alphabet. If not, you are free to choose any other value. So I see myself, or I want to see myself as victorious person. So I would say I am victorious Vidhatri. And you can start with your introduction in this way, and then you can tell about yourself and also how are you feeling today at this place. So a very brief interaction, maybe for a minute, and then we'll again settle and begin with the dialogue. Right? So I would request the brother to play some music, and we can all stand up for this activity. With little ice breaking, we can start with this dialogue. So as the music is played, you are free to go and to meet anybody, introduce yourself, know about them, tell them your virtue, know their virtue. And in a minute, if you're done with the person, you can always go to the second person. And with a brief round, then we can come back to our seats and have our seats. So please, you're free to interact and introduce. हर प्रोफेशनल के लिए रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. आईटी प्रोफेशनल के लिए अभी अप्रैल में होने वाली है 11 to 15. सो एक वहाँ पे हमारे एकेडमी है माउंट आबू में, और उसके बाद भारत में फिर यहाँ पे गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जहाँ पे हम सभी हैं, ये भी एक एकेडमी है वेयर वी हैव different activities of Brahma Kumaris running, which includes retreats for different professionals, retreat for families, corporate programs. So this is also a recognized regional resource center for the Ministry of MHRD, and now it is known as Ministry of Education. So it is a certified regional resource center where we have faculties who address the needs of different peoples, be it corporate as management trainings, behavioral trainings, be it youth, be it families, women, or people of any walk of life. तो आज हम सभी जो यहाँ पे आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो आइडियाज़ उस बीज में जा रहे हैं जहाँ से पूरा वृक्ष सर्व होता है. और आगे इस डिस्कशन को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में रमा दीदी मौजूद हैं. तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस रमा दीदी. शी इज़ प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड, और
आप यहाँ पर दिल्ली में हमारा सिटी फोर्ट में जो वन ऑफ द मेन सेंटर्स है, वहाँ पर आप रह करके वहाँ की सेवाएं भी देखते हैं। पूरे दिल्ली की सेवाएं भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ आईटी विंग जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके आप दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आपके बीच में आए हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपना इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जर्नलिज्म में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। एंड इवन इन ब्रह्मा कुमारीज योर थॉट्स in the form of articles have benefited many souls, shown them the way from darkness to light. So we welcome Rama Didi to felicitate this discussion forward, and with her I would also like to introduce हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे हमारी एकेडमी है, वहाँ से जो इस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं यशवंत भाई जी, who has been instrumental in setting up the wing, in setting up the services at Mount Abu and from there in the whole world. So एक बार आप हाथ हिला करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे बीच में. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर हेडक्वार्टर्स ऑल्सो. और संजीव भाई जी भी हमारे बीच में हैं जो इस पूरे एरिया की सेवाओं को देखते हैं. तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और आप सब का भी जो यहाँ आए हैं, एक बार हम ज़ोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं. आप अपना और बाकी सभी का तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं. And I now request Rama Didi, once we have understood this context, to lead us into this discussion step by step. Thank you. And a very good morning and very warm welcome to all of you to this very beautiful environment. आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आज कौन आए हैं? Okay, so most of you have, experienced the vibrations here. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. और कैसा लग रहा है? बताइए. पॉजिटिव. सो व्हाट मेक्स यू फील पॉजिटिव? जो सेशंस हैं उससे पॉजिटिविटी आ रही है, जो एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, उससे आ रही है? दोनों से आ रही है. भोजन से आ रही है, उससे आ रही है. यहाँ जो भाई बहन सेवा करें उनसे आ रही है, उनसे भी आ रही है. खुद से आ रही है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. खुद से आ रही है. तो खुद से आ रही है मतलब वो आप कैरी भी कर सकते हैं. अब कल जब या आज शाम को जब जाएंगे जहाँ से भी हम आए हैं, यू कैन फील दिस वाइब्रेशन, दिस एनर्जी. बिकॉज अभी जो हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज. तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी चेंज की जब हम बात करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होता है. देयर हैज़ टू बी अ पावरफुल इंटेंशन, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता. बट वी हैव सीन समटाइम्स द इंटेंशन इज़ देयर, हम सभी में वो इंटेंशन आता है, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉक भी आ जाता है. वो ब्लॉक क्या होता है? इसमें आपको मुझे सुनना नहीं है. ईच वन ऑफ यू हैज़ टू स्पीक. इट्स अ डायलॉग. वॉट इज़ दैट स्मॉल ब्लॉक जो कभी कभी उस इंटेंशन को वीक कर देता है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप. जी जी. और फियर ऑफ फेलियर. हाँ जी. लेजीनेस. अनसर्टेनिटी. यस. जी जी. मोटिव. यस. जी. और प्रोक्रेस्टिनेशन. यस. इनडिसाइसिवनेस. और क्या चीज़ है जो हमें उस लक्ष्य से पीछे हटा देती है? अवेयरनेस. लैक ऑफ अवेयरनेस. कई बार हम जब कोई ऐसा कार्य या अपने अंदर छोटा बड़ा जो भी चेंज लाना चाहते हैं, समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, इज इट पॉसिबल या इट विल बी डिफिकल्ट.
करना है परंतु किंतु ये सब आ जाता है, हाँ, लेकिन तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करें. वॉट आर द पॉसिबिलिटीज़ विच आर वेरी प्रैक्टिकल एंड एक और वर्ड है सस्टेनेबल. क्योंकि कई बार हम वो शुरुआत कर भी लेते हैं बट देन वो सस्टेन नहीं होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है. तो वो सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए बिकॉज दिस चेंज इज़ फॉर एवर, देर इज़ नो गोइंग बैक. बट एज यू ऑल शेयर्ड कि कई ऐसे संस्कार हैं, कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, उनको रेक्टिफाई करना है, और क्या हमारे पास रोड मैप है या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको हम इस चेंज को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें एज I will emphasize, nobody is going to tell you, you have to participate in this dialogue. बिकॉज आप में से एक एक यहाँ जो बैठा है बहुत सारा अनुभव लेके आया है. यहाँ पर जो आप बैठे हैं आप सब अपने कार्य क्षेत्र में लीडरशिप पोजीशन में, तो आप अनुभवी हैं. आपने भी लाइफ को ऑब्जर्व किया है, आपने भी सक्सेस फेलियर हर तरह के ऑब्स्टिकल्स देखे हैं और आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम भी किया है. तो ये जो अब 1 घंटा हमारे पास है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी enriching because each of you is going to share your experience, not just knowledge but experience. So this discussion will be guided by very direct questions. I am going to put up a question and each of you have to share your views on that. Before that, as I said, see, to begin any change, we can look at change in many ways, but 3 factors which are common to every process of change is vision, focus and commitment. सबसे पहले ये पता होना कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चाहिए. This vision is very important. तो वो विजन कैसे हम पता करते हैं? How do you find that vision for yourself? Because lot of us, when we are growing up, we are guided by the visions which are given by others, our parents, our family, our relatives, our peer group, media. लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपने अंदर झांको, सोल की जो एक यूनिक वॉइस है, सॉन्ग है, उसको सुनो. बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्रेशर टू अर्न, टू सर्वाइव, टू विन द रेस. दैट्स द होल वे वी आर ट्रेन्ड. बट सिटिंग विथ योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिंग, आप अपने अंदर जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप अपने से पूछते हैं, what is it that I really want? What is it that matters to me the most? What makes me really happy? What gives me lot of energy, power? What is it that liberates me? ऐसी फीलिंग जो आपको अंदर से बहुत भरपूर करती है. तो वो विजन क्या है? शायद हम में से कई लोग उसको जानते हैं, बट शायद कई बार हम उसको मिस कर देते हैं. तो ये विजन जब क्लियर होता है तो फोकस डेवलप होता है. बिकॉज लाइफ में आप देखिए जितने भी स्ट्रेसेस या प्रेशर्स या वो हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस के कारण है. वी आर नॉट फोकस्ड. वी आर नॉट फोकस्ड इन द सेंस, विजन इज़ नॉट कि मुझे
एंटरप्रेन्योर बनना है या इंजीनियर बनना है या CEO बनना है. दैट इज़ नॉट द विजन. विजन इज़ लाइक it's related to the purpose that the soul has come to achieve. हर सोल का एक पर्पस है. अगर सोल उस पर्पस से अलाइंड होती है तो वो विजन बहुत बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सोशली एम्पावरिंग होता है. सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी. क्योंकि कोई भी सोल जो एक पर्पस लेके आई है वो अपने लिए नहीं होता है. It is always for the greater good, for serving the humanity. तो वो विजन क्या है? Am I living that purpose? Because जब वो समझ में आता है आपकी लिबरेशन होने लगती है. फिर जो एनर्जी और बातों में ट्रैप्ड है वो आपको अवेलेबल होती है. जो एनर्जी दूसरों की स्टोरीज या उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम, वो हमको एक्सेस होने लगती है. और फोकस क्या है? फोकस इज़ लाइक एवरी डे. हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो दिन है, उसमें हम उस विजन को लिव कर रहे हैं. हाँ, इफ़ नॉट डेली, एटलीस्ट वीकली. इफ़ नॉट वीकली, एटलीस्ट इन अ पीरियोडिक वे हम उस विजन को सस्टेन कर रहे हैं. तब हमारी लाइफ जो है रियली लिबरेटिंग, एम्पावरिंग, एनरिचिंग होती है. और कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट ये होता है कि नो मैटर व्हाट कम्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, हम उस विजन के लिए फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं. सो कमिटमेंट मीन्स एक्शन लेवल पे हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो उस विजन को पूरा करेगी. तो ये जब होता है, ये जो एक हमारा एक छोटा सा रोड मैप है, कॉम्पस है, वो हमें ड्राइव करता है. तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ढूंढनी नहीं पड़ती. इफ़ द सोल हैज़ अ क्लियर विजन एंड फोकस, द पॉसिबिलिटीज़ विल इमर्ज. In fact, every challenge is a possibility. Every step you take is a possibility. Everything that happens out of your plan is a possibility. Is it right? ऐसा होता है ना, आपने अनुभव किया होगा. कई बार हम सोचते हैं ना कि मुझे मौका मिले, मेरे को सब साधन मिले, मेरे को लाइफ सपोर्ट करे तब मैं आगे बढ़ूं. ऐसा नहीं है. सो दैट पॉसिबिलिटी लाइफ आपको ऑफर करेगा अगर आपका कॉम्पस कंटिन्यूअसली उस फोकस में. तो वो जो फोकस है हम डेली या जैसे बताया पीरियोडिकली अपने अंदर अलाइन करते रहे अपने को उससे, तब आपके रास्ते अपने आप खुलते. बिकॉज द होल लाइफ वर्क्स ऑन दिस कॉम्पस. कि जब आत्मा या कोई व्यक्ति एक ही उस अटेंशन को, अपने अटेंशन को एक ही गोल में या एक ही पर्पस में अलाइन करता है, तो जो भी शेप अप होगा, मैनिफेस्ट होगा, जो भी डोर्स खुलेंगे वो उसी तरफ लीड करेंगे. तो अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देखें, सारा जो होमवर्क है वो अपने अंदर का है. वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट और कंट्रोल और लाइक डू एनीथिंग आउटसाइड. वो तब करना पड़ता है जब हमारी इनर पावर के साथ हम जुड़े हुए नहीं. See, when we are disempowered, when there is no power, that is when we use words like control. That is when we use words like force. That is when we try to do things or control things in a way so that we can feel
worthy, or we can feel supported, or we can feel कि we are, safe. और ये क्यों होता है? क्योंकि we lose touch with ourselves. हमारा जो इन अंदर का ये जो मैप है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये बातें करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what possibilities do I see in the IT sector for, or whatever platform you are representing? Maybe some of you are not from IT. यहाँ पर IT से कितने लोग हैं जो IT okay. So whatever platform you are representing, so what possibilities do I see in that sector for bringing a positive change in society? See, IT is a very dynamic kind of platform, क्योंकि वो हर एक के घर में, हर एक के जेब में, हर एक के दिमाग में, कॉन्शियसनेस में घुस गया. तो आप देखिए कितने पावरफुल हैं आप. What possibilities do you see in this sector for bringing a positive change in society? So we can begin from here. And a very good morning and very warm welcome to all of you to this very beautiful environment. आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आज कौन आए हैं? Okay, so most of you have experienced the vibrations here. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. और कैसा लग रहा है बताइए? पॉजिटिव. सो व्हाट मेक्स यू फील पॉजिटिव? जो सेशंस हैं उससे पॉजिटिविटी आ रही है, जो एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, उससे आ रही है? दोनों से आ रही है. भोजन से आ रही है, उससे आ रही है. यहाँ जो भाई बहन सेवा करें उनसे आ रही है, उनसे भी आ रही है. खुद से आ रही है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. खुद से आ रही है. तो खुद से आ रही है मतलब वो आप कैरी भी कर सकते हैं. अब कल जब या आज शाम को जब जाएंगे जहाँ से भी हम आए हैं, यू कैन फील दिस वाइब्रेशन, दिस एनर्जी, बिकॉज अभी जो हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज. तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी चेंज की जब हम बात करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होता है. देयर हैज़ टू बी अ पावरफुल इंटेंशन, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता. बट वी हैव सीन समटाइम्स द इंटेंशन इज़ देयर, हम सभी में वो इंटेंशन आता है, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉक भी आ जाता है. वो ब्लॉक क्या होता है? इसमें आपको मुझे सुनना नहीं है. ईच वन ऑफ यू हैज़ टू स्पीक. इट्स अ डायलॉग. व्हाट इज़ दैट स्मॉल ब्लॉक जो कभी कभी उस इंटेंशन को वीक कर देता है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप. जी जी. और फियर ऑफ फेलियर. हाँ जी. लेजीनेस. अनसर्टेनिटी. यस. जी जी. मोटिव. यस. जी. और प्रोक्रेस्टिनेशन. यस. इनडिसाइसिवनेस. और क्या चीज़ है जो हमें उस लक्ष्य से पीछे हटा देती है? अवेयरनेस. लैक ऑफ अवेयरनेस. कई बार हम जब कोई ऐसा कार्य या अपने अंदर छोटा बड़ा जो भी चेंज लाना चाहते हैं, समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, इज इट पॉसिबल या इट विल बी डिफिकल्ट. करना है परंतु किंतु ये सब आ जाता है. हाँ, लेकिन तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करें. What are the possibilities which are very practical,
एंड एक और वर्ड है सस्टेनेबल, क्योंकि कई बार हम वो शुरुआत कर भी लेते हैं बट देन वो सस्टेन नहीं होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है. तो वो सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, बिकॉज दिस चेंज इज फॉर एवर, देर इज नो गोइंग बैक. बट एज यू ऑल शेयर्ड कि कई ऐसे संस्कार हैं, कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, उनको रेक्टिफाई करना है, और क्या हमारे पास रोड मैप है या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको हम इस चेंज को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें एज I will emphasize, nobody is going to tell you, you have to participate in this dialogue, because आप में से एक एक यहाँ जो बैठा है बहुत सारा अनुभव लेके आया है. यहाँ पर जो आप बैठे हैं, आप सब अपने कार्य क्षेत्र में लीडरशिप पोजीशन में, तो आप अनुभवी हैं. आपने भी लाइफ को ऑब्जर्व किया है, आपने भी सक्सेस, फेलियर, हर तरह के ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, और आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम भी किया है. तो ये जो अब 1 घंटा हमारे पास है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी enriching, because each of you is going to share your experience, not just knowledge but experience. So this discussion will be guided by very direct questions. I am going to put up a question and each of you have to share your views on that. Before that, as I said, see, to begin any change, we can look at change in many ways, but 3 factors which are common to every process of change is vision, focus and commitment. सबसे पहले ये पता होना कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चाहिए. This vision is very important. तो वो विजन कैसे हम पता करते हैं? How do you find that vision for yourself? Because lot of us, when we are growing up, we are guided by the visions which are given by others, our parents, our family, our relatives, our peer group, media. लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपने अंदर झांको, सोल की जो एक यूनिक वॉइस है, सॉन्ग है, उसको सुनो. बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्रेशर टू अर्न, टू सर्वाइव, टू विन द रेस. दैट्स द होल वे वी आर ट्रेन्ड. बट सिटिंग विथ योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिंग, आप अपने अंदर जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप अपने से पूछते हैं, what is it that I really want? What is it that matters to me the most? What makes me really happy? What gives me lot of energy, power? What is it that liberates me? ऐसी फीलिंग जो आपको अंदर से बहुत भरपूर करती है. तो वो विजन क्या है? शायद हम में से कई लोग उसको जानते हैं, बट शायद कई बार हम उसको मिस कर देते हैं. तो ये विजन जब क्लियर होता है तो फोकस डेवलप होता है. बिकॉज लाइफ में आप देखिए, जितने भी स्ट्रेसेस या प्रेशर्स या वो हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस के कारण है. वी आर नॉट फोकस्ड. वी आर नॉट फोकस्ड इन द सेंस, विजन इज़ नॉट कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या इंजीनियर बनना है या CEO बनना है. दैट इज़ नॉट द विजन. विजन इज़ लाइक, इट्स रिलेटेड टू द पर्पस दैट द सोल हैज़ कम टू अचीव. हर सोल का एक पर्पस है.
अगर सोल उस पर्पस से अलाइंड होती है तो वो विजन बहुत बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सोशली एम्पावरिंग होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी। क्योंकि कोई भी सोल जो एक पर्पस लेके आई है वो अपने लिए नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। तो वो विजन क्या है? एम आई लिविंग दैट पर्पस? बिकॉज जब वो समझ में आता है आपकी लिबरेशन होने लगती है। फिर जो एनर्जी और बातों में ट्रैप्ड है वो आपको अवेलेबल होती है। जो एनर्जी दूसरों की स्टोरीज या उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम, वो हमको एक्सेस होने लगती है। और फोकस क्या है? फोकस इज लाइक एवरी डे, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो दिन है, उसमें हम उस विजन को लिव कर रहे हैं। हाँ, इफ नॉट डेली एटलीस्ट वीकली, इफ नॉट वीकली एटलीस्ट इन अ पीरियोडिक वे हम उस विजन को सस्टेन कर रहे हैं। तब हमारी लाइफ जो है रियली लिबरेटिंग, एम्पावरिंग, एनरिचिंग होती है। और कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट ये होता है कि नो मैटर व्हाट कम्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, हम उस विजन के लिए फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं। सो कमिटमेंट मीन्स एक्शन लेवल पे हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो उस विजन को पूरा करेगी। तो ये जब होता है, ये जो एक हमारा एक छोटा सा रोड मैप है, कॉम्पस है, वो हमें ड्राइव करता है। तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ढूंढनी नहीं पड़ती। इफ़ द सोल हैज़ अ क्लियर विजन एंड फोकस, द पॉसिबिलिटीज़ विल इमर्ज। In fact, every challenge is a possibility. Every step you take is a possibility. Everything that happens out of your plan is a possibility. Is it right? ऐसा होता है ना, आपने अनुभव किया होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि मुझे मौका मिले, मेरे को सब साधन मिले, मेरे को लाइफ सपोर्ट करे तब मैं आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं है। सो दैट पॉसिबिलिटी लाइफ आपको ऑफर करेगा अगर आपका कॉम्पस कंटिन्यूअसली उस फोकस में। तो वो जो फोकस है, हम डेली या जैसे बताया पीरियोडिकली अपने अंदर अलाइन करते रहे अपने को उससे, तब आपके रास्ते अपने आप खुलते। बिकॉज द होल लाइफ वर्क्स ऑन दिस कॉम्पस, कि जब आत्मा या कोई व्यक्ति एक ही उस अटेंशन को, अपने अटेंशन को एक ही गोल में या एक ही पर्पस में अलाइन करता है, तो जो भी शेप अप होगा, मैनिफेस्ट होगा, जो भी डोर्स खुलेंगे वो उसी तरफ लीड करेंगे। तो अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देखें, सारा जो होमवर्क है वो अपने अंदर का है। वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट और कंट्रोल और लाइक डू एनीथिंग आउटसाइड। वो तब करना पड़ता है जब हमारी इनर पावर के साथ हम जुड़े हुए नहीं। See, when we are disempowered, when there is no power, that is when we use words like control. That is when we use words like force. That is when we try to do things or control things in a way so that we can feel worthy, or we can feel supported, or we can feel कि we are safe. और ये क्यों होता है? क्योंकि we lose touch with ourselves. हमारा जो इन अंदर का ये जो मैप है
उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये बातें करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what possibilities do I see in the IT sector for, or whatever, platform you are representing? Maybe some of you are not from IT. यहाँ पर IT से कितने लोग हैं जो IT, okay. So whatever platform you are representing, so what possibilities do I see in that sector for bringing a positive change in society? See, IT is a very dynamic kind of platform, क्योंकि वो हर एक के घर में, हर एक के जेब में, हर एक के दिमाग में, कॉन्शियसनेस में घुस गया. तो आप देखिए कितने पावरफुल हैं आप. What possibilities do you see in this sector for bringing a positive change in society? So we can begin from here. But what I am reading nowadays that अभी किसी का मेल पे रिप्लाई करना होता है, you just go to chat GPT कि एक बार थोड़ा ड्राफ्ट करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा हो सकता है. It means we are not able to कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ. उससे मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लूज हो रही है. इनोवेटिव जो हमारा थॉट्स हैं, कितना हम सोच सकते हैं, कितना डीप सोच सकते हैं, क्या हम उससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, वो थोड़ा लैकिंग है. Anybody from this side, please? But it all starts from our home. After our kid is born, we go to YouTube, Google, go like सारे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, right? So they are consuming that data. So if I just change the perspective from data to the investor or the consumption, where we are the largest consumers and in the next 1,000 babies we will still be the largest consumer. वहाँ पे शायद हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है कि जो डेटा है, जो कंटेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी हमारे एंशिएंट से हमें पास हुई है, how do we take it to the world? How do we create those investors, which can be in form of some applications. अब आज आप बात करते हैं पेपा पिग की वर्सेस कुतुब की, जो कि इंडियन एप्लीकेशन है. तो हम बहुत सारी वैल्यू सिस्टम्स हैं जो हम ऐप्स के थ्रू या मोबाइल, जो कि आजकल हर एक के हाथ में, वहाँ से हम सीड कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं. हाउ डू वी यूज इट एज अ डिवाइस? So my perspective is in for everyone to brainstorm is how can we play that role? अगर अपने घर से ही वो investors तैयार कर सकें, and to make sure that the preparation and your education, we can stop it immediately. That's it. Thank you. So that leads to the next question. What is my role in facilitating this positive change? एक तो हम ये suggestions आए कि हमें क्या करना चाहिए, बट हम अपने रोल में, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें हम क्या कदम उठाएं जो ये पॉजिटिविटी ला सकें. चाहे जैसे इन्होंने कहा कि अपने घर से शुरू कर सकते हैं. सो व्हाट कैन वी डू, सम क्रूशियल स्टेप्स, व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज? what deterrents or what creative ideas we can bring in? Sure. इनको माइक. ओम शांति. सिस्टर, मैं AK गुप्ता नाम है मेरा और मैं डायरेक्टर IT हूँ इफ़को के अंदर. इफ़को फर्टिलाइज़र कंपनी है. तो मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ जो आपने कहा चेंज लाने के लिए. तो हमारा जो है, आप ये कह लीजिए कस्टमर या कंसर्न है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए पूरे देश की, और सोइल सेव द अर्थ मिशन में. तो उसमें हम एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज टेक्नोलॉजी के थ्रू ला सकते हैं. पहला तो मैं ये बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी IT का तो है, पर उससे पहले ये बताएंगे कि इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी डिवाइस की है जिसके अंदर जो कन्वेंशनल यूरिया है 45 kg बैग, उसको आधा लीटर बोतल नैनो यूरिया से रिप्लेस किया है अभी. तो इट इज़ ए बिग चेंज. एंड ये इनोवेशन
ग्लोबल मैप पे है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया से हुई है। और अब तक हमारी कंपनी ने 7 करोड़ बोतल्स इसकी प्रोड्यूस की हैं और 5 करोड़ बोतल इसको बेच चुके हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि जो एक कन्वेंशनल बैग है 50 kg का आधा लीटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन पे बचेगा, कितना CO2 एमिशन बचेगा, कितना उसे बनाने में बचेगा। और सेकंड क्या है कि इससे जो प्लांट की ग्रोथ है, जो किसान है उसे कैरी करेगा, उसकी ग्रोथ यील्ड 8 से 10% का इंक्रीज है। तो ये तो हमारा टेक्नोलॉजी फ्रंट जो जिस फील्ड में हम हैं। तो अब इसको हमें जो है पूरे देश में हर किसान आदमी पे पहुंचाना है और इसका लाभ उठाना है। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम क्या है कि जैसे पूरा एंटायर जो हम चाहते हैं कि हमारा जो किसान भाई है, जैसे शहर के लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जाके और ऑर्डर देते हैं और हर आइटम उसके घर पे पहुंचती है, तो उसी तरीके से हमारा किसान भाई पूरे देश के अंदर हमारा इफ़को बाज़ार.in एक पोर्टल बनाया है। उस पर वो कोई भी आइटम ऑर्डर करेगा एग्री इनपुट, तो उसके घर पे फ्री होम डिलीवरी पहुंचेगी। और वो ऑर्डर की वैल्यू कोई लिमिट नहीं रखी, वो 20 रुपया भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये 12 लैंग्वेज में बनाया है, क्योंकि किसान इंग्लिश तो नहीं समझेगा, खाली हिंदी भी नहीं, तो कोई तमिल का है तो तेलुगु में करेगा, और जो मराठी है वो मराठी के अंदर करेगा। तो उसको 12 लैंग्वेज में हमने उसको पोर्टल को बनाया और वहाँ तक उसको यूज़ करने के लिए पहुँचाया। अब आया कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है AI पावर्ड बेस्ड, अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है कि ड्रोन का यूज़ है फॉर स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड एंड अदर एप्लीकेशन। तो इट इज़ इन ए बिग वे इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया। यहाँ पे क्या था कि किसानों की लैंड बड़ी कम है, लैंड होल्डिंग, मार्जिनल किसान है, तो वहाँ पे ड्रोन का डिप्लॉयमेंट इफ़ेक्टिव नहीं बैठ पा रहा था। पर अभी AI बेस्ड होने से, AI पावर्ड करने से बड़ा प्रिसाइज सॉर्टेज की जा सकती हैं, फ्लाइंग की जा सकती हैं। तो उसके लिए हमने एक स्टेप लिया है। अभी हमने 2500 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, और उन ड्रोन को हम AI पावर्ड करके और क्लाउड से कनेक्ट करके फील्ड के अंदर स्मॉल 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के फार्मिंग के अंदर प्रिसीजन स्प्रेइंग प्लस क्रॉप मॉनिटरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये कैन वी हैव इट ब्रीफ? सो जस्ट क्लोजिंग। सो ये मैडम हमारा जो मिशन है और विज़न है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कि हम किसी भी तरीके से अपने किसान भाई का जीवन के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और उनकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और उनकी लाइफ बेटर करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Possible within the team. And how do I strengthen yourself? Their virtues, like when we talk about empathy, we talk about peace within selves. And if we have enhancement of these values, so I'm sure they will do a lot of things good within the office, within their families, and within the country as a whole. So that's my perspective. सबको सुंदर था साथ में और मेरे बहुत में क्या चल रहा है। So what I heard from Akshay yesterday was take a break, take a pause. I love that what you said, SOS. I mean, to us so far was save our soul, but now it becomes like step back, observe, and then steer. So looking forward that we take that part of it and move ahead, because that could be something when we take a little step back, pause it, because and I don't know how many of us relate to that, but that's for sure is me. I love to be on the driving seat all the time, lest my team fails or something happens or there is something about it. So probably that is important aspect that we need to invite. At least I need to invite. I can't speak for others. So for So now most of the people are from the IT sector, but I am from the construction. I am working with DLF for a construction project. So in my field actually, the spirituality in my people, which are mostly the laborers, means if we leave the white collar job people, then the most of them are party side would be the laborers.
एंड उनके लिए स्पिरिचुअलिटी वर्ड ही नहीं है, उनके माइंड में दे डोंट नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बस भगवान का नाम लेने पे ही खत्म हो जाती है, एंड दैट इज द लिमिट वेयर दे थिंक दैट देयर स्पिरिचुअलिटी इज। So for those people, for if we talk about the positivity, happiness, तो वो डेली का जो अपना मॉर्निंग से इवनिंग का जो शेड्यूल है और उसके बाद जाके सो जाना और फिर से काम पे आ जाना, वहाँ पर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो उन लोगों को कैसे हम ये बता सकें कि इसके अलावा आपका लाइफ का मोटिव ये नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी या अध्यात्म क्या है, उसके लिए आई थिंक कि हम उनको उस टाइम के लिए, चाहे वो 10 मिनट या 5 मिनट, जैसे कि हमारे वर्कर्स जब साइट पर आते हैं तो हम उनको डेली एक टूल बॉक्स ट्रेनिंग देते हैं उनको। What role we can contribute? How can we enable those possibilities? Last दिन I checked in day before yesterday evening and it's been a very positive experience. तो गाड़ी पे मैं GPS यूज़ करके आया था यहाँ पे, and I also found a GPS in Brahma Kumaris, right? So definition बदल गई, guru positioning system हो गया मेरे लिए, right from a global positioning system this became a guru positioning system for me. So on the possibilities and how we can action and get those possibilities, we are taking a lot of learning from here. हमने IT में भी बात किया कि कॉन्शियसनेस नहीं है, मेरे ख्याल से सर आपने बात किया था उस बारे में। Humans have that consciousness. IT will develop consciousness, and sometimes it's just a matter of time. I think what we have to do, Didi, is we have to raise the level of consciousness, right? And of course, it has to begin with us. So what we are taking, or I'm taking from here, is an increased level of consciousness, and then what can be imparted to our teams, right, is also an enhanced level of consciousness. And there are a lot of leaders in this room. So वो अभी जो मैंने गुरु पोजिशन सिस्टम की बात की है, right, all the leaders in the room can be those GPS for their teams. So you said about possibilities, you said about how you make the possibilities happen. I think everybody here should take the oath and be a GPS for their teams. That's out. Thank you for that. तो मैं एक रिसेंट हाल ही में हुई एक वारदात शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट के एक IT डिपार्टमेंट से मिलकर आई। मैं उनसे पहली बार ही मिली और उन्होंने मेरे साथ में ये चीज़ शेयर करी कि वो एज एन IT डिपार्टमेंट उनका रोल कितना महत्व रखता है उस गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनके जो भी ऑपरेशंस हैं वहाँ पर ही पूरे स्टेट के सारे वर्कलोड्स होस्ट होते हैं, उन्हीं से ही सारी जो भी सोशल इनिशिएटिव गवर्नमेंट रन कर रही है वो उन्हीं के ही सिस्टम्स के ऊपर होता है। अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो इम्पैक्ट इतना हाई होता है कि एक सिटीजन के लिए भी बहुत हाई हो जाता है। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाउन है तो एक फार्मर जो काफ़ी माइल्स चल के भी आएगा वो अपना राशन इकट्ठा करने तो शायद वो ना कर पाए क्योंकि सिस्टम डाउन है। तो इस टाइप के उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी। मैंने काफ़ी टाइम तक उन सभी चीज़ों को सुना, पर मैंने ये रिफ्लेक्ट किया कि मुझे ऐसा लगा कि वो लोग इतने पावरफुल पोजीशंस में हैं जहाँ पे वो लोग इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और मैं एज अ इंस्ट्रूमेंट उनके पास बन के आई जहाँ पर मेरे पास में कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिनको यूज़ करके एक्सप्लोर करके वो अपने सिस्टम्स, अपने प्रोसेसेस, अपने लोगों को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। आप यू कैन थिंक अबाउट इट एज लाइक अ स्टीम इंजन, जिसकी हम अगर वोल्टेज बढ़ा दें तो पावर कितनी अगर उसमें आ जाएगी तो सब चीज़ रोशन हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फास्टर, लाइटर। सो आई थॉट कि पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होकर अपने आसपास के लोगों की कहानियाँ सुनें, उनके एक्सपीरियंसेस को समझें और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचें कि अब हम इसमें और नया क्या कर सकते हैं जिससे इनकी लाइफ बेटर हो सके। तो एक वो पर्सपेक्टिव, और वही आपने भी आज सुबह राणा दीदी ने बोला, रथ है और सारथी है। तो इफ वी आर इन चार्ज ऑफ आवर चैरियट्स देन वी कैन रियली मेक चेंज, वी कैन रियली मूव फास्टर इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर हम वो रास्ता भटक जाते हैं, लेजी हो जाते हैं या किसी भी सोच की वजह से अपने आप को डिसएम्पावर करने लगते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे बस का नहीं है,
तो हम उसका एक ट्रिपल डाउन इफेक्ट ये होता है कि हम अपने स्टेट की, अपने सिटीजन्स की, अपने सिस्टम्स को नहीं इम्प्रूव कर पाते। तो जस्ट अ थॉट। somebody was yeah और मैं यहाँ पे सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन एक चीज है एथिक्स जो है उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव चेंज आ सकता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आज यहाँ पे जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, ओके, बजाज फाइनेंस से कॉल आता होगा, पीएनबी, मेटलाइफ से कॉल आते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको कस्टमर सर्विस से कॉल आते होंगे जो कि आपको परचेज सर्विसेज के लिए बोलते हैं कि आप हमारा सर्विस खरीदें। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए, कई लोगों ने बोला कि ऊपर से कंप्लाइंट है, गवर्नमेंट ने डीएनडी करके एक ऐप बनाया दैट आप अपना वहाँ पे रजिस्टर करिए, अगर किसी ने कॉल किया तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब ये जब कॉल सेंटर लगाया जाता है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आईडी है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं डीएनडी नंबर को कॉल रोक सकता हूँ, मेरा एजेंट कॉल भी नहीं कर सकता है, हाँ, आई कैन ब्लैकलिस्ट दैट टू माय एजेंट दैट ही कैन नॉट कॉल, बट वहाँ पे जाके रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी हम लोगों का मेन टूल होता है, और वो प्राइवेसी सब ब्रीच कर देते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं बैंकों का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं इंडिया में हैं जो वो ब्रीच करती हैं, थर्ड पार्टी को दे देती हैं, भाई आप हमें सेल्स लाके दे दो। तो वो डीएनडी नंबर पे एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई आपको ब्लैकलिस्ट करना है, वो आईटी हेड या वो जो मार्केटिंग हेड जो भी होता है वो कहता है नहीं, इट इज अप टू एजेंट, वो उसको एज अ ग्रांटेड देते हैं क्या। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग बहुत एआई से डेटाबेस बनाते हैं। सेकंड पार्ट इज दैट ऑल द sales companies create a database, they know how much you earn, how much is you are doing an expenditure, which stores you have visited, तो उनके पास सारा आज डेटा है, all data, and with the AI they found after culturing that AI they found that this person is very healthy for us, is a potential customer, but he is a daily, but still they call them because they are highly potential customers। तो वहाँ पे ethics जो है, आज बैंकिंग सेक्टर में ethics मिस हो गया है। बड़ी बड़ी बैंक्स ब्रीच हो जाती हैं, वो अपने कस्टमर्स को बताती नहीं है कि हमारा डेटा ब्रीच हो गया है, आता है न्यूज़ आती है ब्रीच हो गया है, लेकिन एक नियम है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, अगर मेरा डेटा ब्रीच होता है मेरे को हर संस्थान को बताना होगा, मेरे कस्टमर को भी बताना होगा कि आपका डेटा ब्रीच हो गया, आपका डेटा लीक हो गया है। वो हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं है अभी। गवर्नमेंट डीपीडीपी एक्ट लेके आया है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, बट सेक्रेटरी जनरल हैं और माउंट आबू से आए हैं। भाई साहब की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके क्लास भी आपने सुने, सो आप भी इस डायलॉग में अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे सामने रखेंगे। आप कंटिन्यू करिए। achieve the targets in their life, that is the keyword. Yes. जैसे हम ये आईटी विंग का यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पे डायलॉग चल रहा है, ऐसे जैसे आपको बताया गया एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग भी है हमारा, बिजनेस इंडस्ट्री का भी विंग है। तो हर प्लेटफॉर्म पे हमारा ये प्रयास रहता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी और दूसरों को यहाँ पर लाकर हम उन्हें ये अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में एक रिफ्लेक्शन होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है। सो द चेंज इज़ देयर, बट वी ऑल हैव टू पुट इन मोर एफर्ट। जी, या माई रोल इन बच्चों को तो किस तरह से बोलेंगे कि वो साहब मोबाइल फोन मत चलाओ बेटा, राइट। हम ऑफिस में हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं, तो वहाँ हम बड़ा अच्छा वर्ड बोलते, सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, बाकी चीज़ें। इथिक्स की बात थी, तो आईटी अगर हम इथिक्स और वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं, सो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल।
राइट। तो हम अगर चेंज, बदलाव या इस तरह की जो भी चीज़ें, अच्छे काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी फील्ड में है, वहाँ हम अगर उनको एम्पैथी, उनको रेस्पेक्ट दें, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली जो दिव्यात्मा हमारे अंदर है उनके अंदर भी है, बट लोग पोजीशन, पावर, मनी, कास्ट, बहुत सारी चीज़ों के बेस पर, तो बहुत सारे बदलाव हैं जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, वो धीरे धीरे बाकी लोगों के ऊपर भी, इट इज इन्फेक्शियस, वो फैलेगा। जी, प्लीज फिनिश जो आप बोलना चाहते हैं। ओके, सो we'll have one more, sharing, then we'll hear our esteemed, chairperson and भाई साहब जी बताएं। यस, माइक पे बोलिए, सबको सुनाई देगा। मेरा नाम मुकेश है और आई वर्क विद द योटा डेटा सेंटर एंड एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन। सो द चेंज स्टार्ट फ्रॉम द होम इटसेल्फ, जैसे भाई साहब ने कहा। आई डू द मेडिटेशन फ्रॉम लॉन्ग, इट्स अराउंड 5 years। मेरी 2 daughters हैं और आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर देम एज वेल। एक जो है वो लगभग 11 साल की है, दूसरी 14 साल की है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बच्चों को मेडिटेशन नहीं कराता। प्रॉब्लम ये है आज का कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है, उस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन भी बढ़ा है बच्चों के साथ में। तो बच्चों के साथ में डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ा है तो उनका माइंडसेट जो है वो कम उम्र में ही ज्यादा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो जब बच्चों का माइंडसेट मैच्योर हो गया है तो हमें अपनी प्रैक्टिस को भी उसके अकॉर्डिंग उनके लेवल पे लाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है खुद का, जैसे कि मैं खुद ढूंढता रहता हूँ अपने बच्चों के लिए कि कोई मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मैं बच्चों का इनर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करवा सकूं, बच्चों को इन सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर कर सकूं। उसके लिए उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन करना जरूरी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म यदि अवेलेबल होंगे तो हम पेरेंट्स, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही इन सब चीज़ों का ज्ञान दे पाएँ और दिला पाएँ। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी दीदी, मैं और ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एक्चुअली थॉट बिल्ड करने के लिए, बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करते हैं आफ्टर 60, आफ्टर 50, राइट। हमने ये सोचा कि यार इसके बाद हम गुरु का नाम लेंगे, ये सब सोचेंगे, बट थैंक यू, आपने बात बोली और ये मतलब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने हमेशा एक पर्सन को इंस्पिरेशन देखा है जो सक्सेसफुल रहा है। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है, किसी के लिए अंबानी होगा तो किसी के लिए सचिन होगा, किसी के लिए विराट होगा, बट कभी हमारे पास क्या वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम बोल सकते हैं कि इन सब ने ये करने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी इज द फाइनल, और जो भी चीज़ है दैट इज एक्चुअली द फाइनल गोल। तो मुझे वो लगता है कि शायद हमें वो एग्जाम्पल्स और कम्युनिकेट करने चाहिए। वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट अबाउट दीज हीरोज व्हिच व्हाट हैव यू रियलाइज्ड आफ्टर रीचिंग द 65, चाहे प्रेम जी हैं चाहे कोई भी है, कि एसेंशियली फिलैंथ्रोपी इज द लास्ट गोल, या कोई भी चीज़ हो, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स, बट दीज आर द रियल हीरोज जो शायद हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। और कितना भी करें, चाहे ऐप हो, चाहे करिकुलम्स हो, चाहे स्कूल हो, they do what they see. So again, the onus is merging both the questions, दीदी, चाहे हम कर सकते हैं, चाहे as a parent, चाहे as a GPS in offices, but I think it again starts with us, and glad that we had the opportunity of 2 days to doing this. Maybe next time we bring our employees, colleagues, kids to such retreat programs and communicate. So thank you all for joining, for making time to be part of this wonderful dialogue, and for sharing these valuable insights. Now we have amongst us आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे बीच में आए हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आप दिव्य बुद्धि, इनको परमात्मा से वरदान मिला है। हिज डीप विजडम, हिज insightful understanding of the very complex spiritual topics and how to make them very lucid and very communicable to the common man. तो आप बहुत अच्छे लेखक, एडिटर रहे हैं। पहले हमारा एक अंग्रेज़ी में जर्नल निकलता था, प्योरिटी, आपने बहुत सालों तक उसको एडिट किया है। एंड I have seen him, his insight into these spiritual topics and spiritual knowledge
is not just from an intellectual level, it is from a deep commitment to, offer this true knowledge to the society and to uplift every person. वो जो इनके अंदर भावना है, उसके लिए परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया है. तो आज का ये जो विषय है, भाई साहब हमने अभी ये डिस्कस किया है कि जो आईटी सेक्टर से सब ये लीडर्स आए हैं, तो इन सभी ने इस बात पर शेयर किया कि कैसे ये एक आईटी के द्वारा पॉजिटिव चेंज समाज में ला सकते हैं, और ये अपने लेवल पर ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे ये चेंज शुरू हो. तो आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं. या सो वी विल हैव अ वेलकम थ्रू बोके भाई साहब एंड आशा दीदी को. सिस्टर्स वेलकम कर रही हैं. आदरणीय आशा दीदी. आशा दीदी हमारा जो ब्रह्मा कुमारीज़ का आईटी विंग है, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं और ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर भी. ओम शांति. देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको यूज़ करना कैसे किया जाता है डिपेंड्स अपॉन उसको यूज़ करने वाला कौन है. अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो कहा तो यही जाता है कि वो बहुत अच्छे काम में आ सकती है, परंतु यूज़ किस लिए हो रही है, और बहुत खुशी से हो रही है. कल को न्यूज़ आ जाए कि इंडिया ने बहुत ऐसा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बना लिया जो अन्य देशों से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो सारे भारतवासी मुस्कुराने लग जाते हैं. वाह. लेकिन है क्या वो? तो आज सारे लोग, समझदार लोग, जो शास्त्रों में लिखा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि बुद्धि बड़ी तेज चीज़ है, लेकिन बुद्धि किस तरफ जा रही है. अब आपकी आईटी बहुत काम कर सकती है, लेकिन आईटी का प्रयोग क्या हो रहा है. इसलिए ब्रह्मा कुमारी फर्स्ट प्रेफरेंस देती है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को. आप कह रहे थे कि आफ्टर 65 इयर्स ऑफ एज सोचा जाता है कि अब दूसरी तरफ ध्यान करो, रिटर्न जर्नी की तरफ. अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ को शुरू से अपनाना चाहिए या बाद में. एक और इंडिया के लोग बच्चे को भी गुरु के पास ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, इसके कान में कुछ पड़ेगा. ये भी हमारे देश में है. और दूसरी ओर हम कहते हैं, हमने वर्ण बनाए हुए हैं कि वानप्रस्थ में जाके थोड़ा ये सब कुछ गड़बड़ करके अब दोबारा सीधे हो जाओ. अच्छा, तो इसलिए बेसिक टेक्नोलॉजी जो इन सब प्रकार के जितने भी हमारी विशेषताएं हैं उसको ठीक तरीके से यूज़ करना हो, तो पहले उस टेक्नोलॉजी को समझ के और उसको प्रॉपर यूज़ करना सीखे हम. ये हमने ब्रह्मा कुमारी में अच्छी तरह सीखा है. मुझे कम से कम 70 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी में, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अनुभव से मैं कह रहा हूँ.
आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी जो कि आपके साथ अगली बर्थ में भी चली जाए? स्पिरिचुअल जा सकती है। अच्छा, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर आपने दुनिया में बहुत कैमरास देखे हैं। आपकी आंखों जैसा सुंदर कैमरा किसी के पास है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। और सिर्फ ये नहीं, वही आंख उसी व्यक्ति को मॉर्निंग में अच्छा गिनती है, एप्पल ऑफ द आई गिनती है, और इवनिंग में उसी व्यक्ति को देखकर कहती है गेट लॉस्ट। अब बताओ, हैं? अंदर कुछ और है ना। हमारे कानों जैसा कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट देखा है, साउंड बॉक्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जब कान में किसी की सिर्फ तारीफ कर दो तो कहेगा दोबारा बताना, मैंने सुना नहीं अच्छी तरह। और उसकी इंसल्ट कर दो तो समझेगा मेरे कान में गरम गरम लेड डाल दिया गया है। तो हर चीज़ हमारी यूनिक है। अब उसको यूज़ करने वाला कौन है? आज सड़क पे जाइए, हर ट्रक के पीछे लिखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लिखा होता है। इसकी नौबत क्यों आई? और आज सारी दुनिया का काला पेंट आप इंपोर्ट कर लें तो भी बुरी नज़र वाले ज़्यादा हैं। बताइए, तो ये हम खाली स्लोगन करते रहेंगे या कुछ डीप जाएंगे? इसलिए बेसिक फ्लॉ जो हर एक प्रकार की विद्या के मिसयूज़ का है, आप मनुष्य को एजुकेट कर दीजिए तो एजुकेटेड व्यक्ति ज़्यादा चालाक हो जाता है, वो भोले भाले को ज़्यादा ठग सकता है, इतना ही है ना। तो वो फ्लॉ क्या है कि बहुत मामूली सा फ्लॉ है। हम ही लोग भारतवासी देवताओं के पुजारी हैं। मंदिरों में जाओ, देवी देवताओं की सजी हुई मूर्तियां हैं। दुनिया के किसी स्टैचू को इस तरह नहीं सजाया जाता कि उसके वस्त्र पहनाए जाएं, जेवर लगाए जाएं, बहुत बड़ा टेम्पल बनाया जाए, फिर एक अटेंडेंट रखा जाए जो मूर्ति को भी नहलाए धुलाए, खुशबू दे, खाना खिलाए। तो कुछ तो होंगे। किसके यादगार हैं ये? हमारे ही हैं। हमारे लोगों के नाम किसके ऊपर हैं? देवी देवताओं के ऊपर ही हैं। किसी का नाम कृष्ण होगा, किसी का राम होगा, शिव भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन विदाउट नॉलेज। आज एक व्यक्ति का नाम सीताराम होता है। सीता जी तो देवी थी, राम जी देवता थे। तुम सीताराम कैसे हो गए अकेले ही? तुम सीता हो या राम हो भी हो या नहीं हो, तो हमने सिर्फ नाम रखा हुआ है। आपको राधे श्याम भी मिल जाएंगे, त्रिलोकीनाथ भी मिल जाएंगे। रेंटेड चबारा होगा, उसका किराया भी नहीं दे पाएंगे, नाम त्रिलोकीनाथ है। हम लोग ऐसा, मुर्दा जा रहा होगा कहेंगे अमरनाथ जी मर गए। अब बताओ। तो कहने का भाव ये है कि हमारी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल हेरिटेज थी, जिसके कारण से भारत विश्व गुरु था, दैट हैज़ बीन लॉस्ट। अब हम नाम मात्र के गिना जाता है कि भारत के बहुत वेद शास्त्र हैं, बहुत ये है, बहुत मठ पंथ हैं, कुंभ मेले होते हैं। वास्तव में कुछ नहीं। हमने राम मंदिर बनाया तो उसकी क्या पब्लिसिटी की जा रही है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाएगा, वहाँ 5 स्टार होटल आ जाएंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, नदी के किनारे आपको फ्लैट मिल जाएगा। अब वो 5 स्टार होटल वाले, क्या वहाँ शराब नहीं पी जाएगी, मांस नहीं बिकेगा, या तो कुछ धार्मिक स्थान का लगाओ। तो कहने का भाव ये, हम नाम के स्पिरिचुअल हैं। तो बेसिक बात ये है, हमें ये देखना है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो हुआ ये है, एक सिंपल बात है,
हमारी बॉडी को हम आजकल सब कुछ गिनते हैं, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हमारी पोजीशन, हमारे पोजेशन, हमारे संबंध सारे बॉडी से रिलेटेड है। और बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिजीज, डिके एंड डेथ, वो तो पक्का है। गीता का फर्स्ट लेसन क्या है? कि तुम आत्मा हो। सारा स्ट्रेस गीता में ये दिया गया है, तुम आत्मा हो। आत्मा एटर्नल है, अजर अमर अविनाशी है, और शरीर नश्वर है। और हमने नश्वर को अपना आप मान लिया, तो पहले तो वी आर सेलिंग इन ए ट्रेजिक बोट, जिसको डूबना ही है। अच्छा, अब आइए कि फैक्ट क्या है। हम अपनी बॉडी के हर पार्ट को माई कह के संबोधित करते हैं। माई नोज, माई हैंड्स, माई लेग्स, टोटल माई बॉडी। सिर दर्द होता है तो क्या कहते हैं? मैं सिर दर्द हूं या मेरे सिर में दर्द है? तो ये मेरी हो गई माई। वेयर इज द आई? अगर कोई व्यक्ति माई को आई समझने लग जाए, अपने पोजेशन को पोजेसर मानने लग जाए, तो कहाँ तक बकरे की माँ खैर बनाएगी? गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? ये है गड़बड़। तो अब हम स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत दूर की चीज़ गिनते हैं, जैसे बॉडी को स्पिरिचुअल बनना है। वास्तव में हम हैं ही बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो बीइंग इज समथिंग लाइव, समथिंग स्पिरिचुअल, और ह्यूमन इज अवर बॉडी। तो आज कल ह्यूमन ही ह्यूमन है, बीइंग गया। इसलिए जो आपका विषय है पॉजिटिव आदि आदि, उसकी जड़ क्या है कि इंसान को अगर पक्का पता लग जाए कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट पॉजिटिव के, और वही मेरा अपना फ़ायदा है, तो कौन नेगेटिव होगा? हमें कुछ धोखा है। धोखा क्या है कि हम नॉर्मली भी कह देते हैं, देखो जी वो व्यक्ति है, सारे एथिक्स की बात कर रहे थे, सब ख़त्म कर दिए हैं, सारा गलत काम करता है, उसके इतने बंगले हैं, उसके इतना मान शान है, और ये व्यक्ति है, ये बेचारा नियमों पे चलता है, इसको तो खाना भी मुश्किल नसीब होता है। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दैट? हम क्यों कहते हैं ये? अंदर कहता है कि आज के ज़माने में डू इन रोम एज रोमन्स डू, तो आज कुछ ऐसा वैसा करो, कह भी रहे थे कॉम्प्रोमाइज विद प्रिंसिपल्स। क्यों हम करते हैं? कि हमारे अंदर एक बेसिक कन्विक्शन नहीं है कि अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है। कह देते हैं हम कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन अंदर क्या कहता है कि नहीं, कुछ वैसा करोगे तो वैसा पाओगे। हर ये है। इसलिए फंडामेंटल हमें अपने आप को ही जानना है। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। आप यहीं बैठे फैसला करिए कि आई, आप बॉडी है या सोल है? अगले जन्म में कौन जाएगा? क्यों जी, हम तो भारतवासी हैं, वो लोग तो कहते हैं कब्र में डाल दिया छुट्टी। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसी बात को रिवाइव कर रही है, और ब्रह्मा कुमारी ने एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखा है, और सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं किया, बल्कि सारे वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह के लोग हों, उनको स्पिरिचुअलाइज करके उनकी लाइफ को वो बनाया है, और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम घर बार छोड़ दो, दुकान बिजनेस छोड़ दो, नहीं, जितना मर्जी करो। आप जानते हैं लोग स्पिरिचुअल का ये अर्थ लेते हैं, स्पिरिचुअल मीन्स एबनॉर्मल, कि आपने घर छोड़ना है, आपने दुनिया में नहीं जाना है, पैसा बड़ी ख़राब चीज़ है, पैसा कमाया तो आप, पैसा लिया तो आपके अंदर ऐब आ जाएंगे। क्यों? श्री लक्ष्मी को हम पूजते हैं, वो किसकी गॉडेस है? धन की। तो अगर धन की गॉडेस को पूज सकते हैं, तो धन अच्छी चीज़ होगी या ख़राब चीज़ होगी? तो फिर हम धन को ख़राब क्यों कहते हैं? अच्छा,
हमारे देवी देवता पुरुष स्त्री दोनों पूजे जाते हैं। आप देखो लक्ष्मी नारायण दोनों तख्त पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं इकट्ठे। राम सीता दोनों सिंहासन पे बैठे हैं। तो अगर स्त्री नागिन हो या खराब हो या कंडेमेबल हो या सबॉर्डिनेट हो तो फिर ये क्यों हो? वो तो बराबर है। इसलिए, और हम आपको ये भी बता दें कि उन हमारे जो पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं उसमें 2 क्राउन होते हैं। एक क्राउन तो उन पे ऊपर होता है वर्ल्डली पावर का, जिसको हम हाईनेस कहते हैं, सोने चांदी हीरे का, और एक उनके पीछे लाइट का क्राउन होता है जो स्पिरिचुअल पावर का होता है। तो दोनों क्राउन हर देवी देवता में होते हैं। और आज क्या है? आज स्पिरिचुअल अलग, दुनियावी अलग। दुनिया में आप कोई को 2 पैसे प्राइस कम कर दे नहीं करेंगे। उनको कब महाराज आपकी स्लैब लगवा देते हैं मंदिर में, 1 लाख दे दो, वो दे देंगे। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी भी पार्ट टाइम हो गई है, जैसे हेल्थ भी पार्ट टाइम हो गई ना। सुबह सैर करना ज़रूरी है, जॉगिंग ज़रूरी है, ये वो। क्या देवी देवता जॉगिंग करते थे क्या? नहीं। तो इसलिए हमने कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है। बेसिक कारण क्या है? हमने जो रूट है आई द सोल, तो सोल एक एनर्जी है, और वो एनर्जी इतनी नेचुरली वर्किंग एनर्जी है कि बाकी सारी एनर्जियाँ सोल के साथ ही काम करती है। सोल निकल जाए तो दूध पिला के दिखाइए डेड बॉडी को। सोल निकलने के बाद तो हम चाचा जी को चाचा जी भी नहीं कहते, मुर्दा भूत कहते हैं कि भी ये भूत आ गया। इसलिए वो सोल, हम कहाँ तक सोल कॉन्शियस हैं? गॉड कॉन्शियस तो नेक्स्ट बात है। अब क्योंकि सोल कॉन्शियस ही नहीं है तो गॉड भी हमारे अजीब तरह के हैं। इसलिए बेसिक क्या है? आई एंड माई के डिफरेंस को जानकर आई द बीइंग। अब देखिए, आप दुनिया में कुछ भी चाहते हैं, एनीथिंग यू डिज़ायर, एक यहाँ बोर्ड ले लीजिए, उस पर लिखिए कोई भी आप दुनिया की चीज़ चाहते हैं, तो वेदर दैट इज़ मटेरियल और नॉन मटेरियल, वेदर दैट इज स्पिरिचुअल और फिजिकल, यहीं बैठ के देख लीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ आदमी प्रेम चाहता है, ठीक है? अब प्रेम स्पिरिचुअल चीज़ है या मटेरियल चीज़ है? पैसे देकर प्रेम खरीदा जा सकता? नहीं। अब हमारे प्रेम का क्या हाल है? हम सब जानते हैं प्रेम को भगवान से तुलना की गई है। गॉड इज लव तो कहते हैं, लव इज गॉड कहते हैं। परमात्मा प्रेम का सागर है। हम गाते हैं तेरी बूंद के प्यासे हम। और आज हम प्रेम को क्या डिस्क्राइब करते हैं? फॉल इन लव। गौर फरमाइए, जितने लोग होंगे प्रेम के साथ क्या एडजेक्टिव लगाते हैं? राइज इन लव या फॉल इन लव? क्यों? वाई? क्यों? कि जो बॉडीली प्रेम होगा, बॉडी और बॉडी की चीज़ों से, चाहे आपकी प्रॉपर्टी से हो, मनी से हो, फिजिकल रिलेशन, वो फॉल ही होगा। और जो स्पिरिचुअल होगा वो राइज होगा। तो राइज इन लव तो आज दिखता ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी आपको पहले तो राइज इन लव बताएगी। तो एनी इमोशन, एनी फीलिंग दैट ए ह्यूमन बीइंग नीड्स इज नाइदर फिजिकल नॉर मटेरियल, देन व्हाई वी आर रनिंग आफ्टर दिस फिजिकल एंड मटेरियल थिंग्स? और नंबर 2, व्हाट इज, एक किसी चीज़ की नेचुरल नेचर होती है जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। एक थिंग इज नोन बाय इट्स नेचुरल नेचर। जैसे आग है, तो आग की नेचुरल नेचर क्या है? आग की नेचुरल नेचर क्या है? फायर विल बर्न।
आइस की नेचुरल नेचर क्या है? ठंडा करना। आप आइस का एक क्यूब हाथ पे रख लें, वो पिघलते पिघलते पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, पर ठंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी नेचुरल नेचर है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेचुरल नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। नेचुरल, नकली नेचुरल नहीं। सिगरेट पीने वाला कहता है मैं तो इसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती, मैं ये नहीं करता, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। नहीं, नेचुरल नेचर। इज इट डिस्क्राइब्ड एनीवेयर? है डिस्क्राइब्ड। सो नेचुरल नेचर ऑफ द सोल इज, सोल की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। आपने सुना होगा शायद। सत्य मीन्स एटर्नल, व्हाट इज दैट इज वाज, दैट इज दैट विल बी। चित्त मीन्स लाइव, कि वो चीज़ जिंदा है, अनुभव करने वाली है। डेड बॉडी चित्त नहीं है, ये टेबल चित्त नहीं है, इसको जड़ कहते हैं। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज द नेचुरल नेचर ऑफ द सोल, दैट इज कॉल्ड आनंद स्वरूप। अब आनंद स्वरूप की इंग्लिश क्या होगी? हाँ जी, ब्लिसफुल। एटर्नल सोल है तो एटर्नल ब्लिस, ठीक है। अब ये बताइए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्लिस in comparison to other properties, other things that we seek in life? लव है, शांति है, सुख है, संतोष है, आनंद भी है। आनंद और उनमें कुछ फर्क है? हाँ, सस्टेनेबल होता है। तो आज कहाँ है ब्लिसफुल हम? अगर सस्टेनेबल है तो कहाँ है? आज तो कंस्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस है। आप देखिए, एवरी अदर एट्रीब्यूट वी सीक हैज ए एंटोनिम। शांति का उल्टा होता है, होता है ना? क्या? हाँ। प्रेम का उल्टा होता है नफरत, घृणा। सुख का उल्टा होता है, ब्लिस का उल्टा बताइए। तो हम वो हस्ती हैं, सोल, जो बियॉन्ड सुख दुख है। और आज हम शांति ढूंढते हैं, कि शांति भी के लिए भी तरसते हैं। वो हर साल शांति थोड़ी और दूर हो जाती है। और वंडरफुल बात क्या है कि हर साल हम पीस प्राइज देते हैं। अच्छा, नॉर्मली प्राइज इज गिवन आफ्टर अटेनमेंट, कि किसी ने पास कर लिया उसको डिग्री दे दी, कोई पहाड़ी पे चढ़ गया उसको माउंटेनियरिंग का अवार्ड दे दिया। शांति हुई नहीं और हम शांति के प्राइज दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी को 7 मिले, 7 वर्ल्ड पीस प्राइज। शांति कहाँ है? तो हम प्राइज भी कोशिश करने के लिए दे देते हैं कि इस इंसान ने शांति स्थापन करने की कोशिश की, इसलिए इसको प्राइज दे दो। ये हमारा हाल है। और अशांति है, सबसे ज़्यादा पूछोगे तो लोग शांति मांगते हैं। शांति इज ओनली 0, नाइदर प्लस नॉर माइनस। शांति ओनली इमेजिनरी फिगर, जैसे किसी का बैंक बैलेंस 0 ये है। आजकल तो आईटी का ज़माना है, तो किसी व्यक्ति को बैंक ने भेज दिया स्टेटमेंट कि जो है तेरा अकाउंट 0 आ रहा है। उसने भी ऐसे शौकिया तौर पे लिख दिया कि 0 का चेक भेज दिया कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो उनके थैंक्स का भी आ गया, थैंक्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ 0। ये तो आईटी की बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आनंद से हम क्यों नीचे आ गए? बिकॉज वी बिकेम बॉडी कॉन्शियस। द वन सिंगल मिस्टेक दैट
ह्यूमैनिटी डिड और वी डिड वाज कि कभी हम आत्मा मानते थे तो ये भारत देवलोक था, अमरलोक था, और आज हम क्या कहते हैं उसको? मृत्यु लोक। क्यों कहते हैं मृत्यु लोक? कि मरे तो समझेंगे सब गया। अच्छा, और फिर अनटाइमली डेथ, यहाँ भरोसा भी नहीं है। आप 65 साल की बात कर रहे हैं, बंदा 65 साल तक क्यों वेट करेगा? वो कहेगा पता नहीं 25 में ही कुछ हो जाए, 16 में ही। तो जो उसने बुढ़ापे में करना होता है बचपन में करना शुरू कर देता है कि पता नहीं। देयरफॉर देयर इज ए बेसिक थिंग विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड। अगर आपने सचमुच पॉजिटिविटी को लेना है तो अब बात यह है कि पॉजिटिव से आपको सदा फ़ायदा ही फ़ायदा है और नेगेटिव में नुकसान ही नुकसान है। किसी भी ऑफिस में एक मिस्टर झा होता है, नॉट ऑन रोल्स, अनऑफिशियली होता है, पता नहीं आपके वहाँ है कि नहीं है। अच्छा, झा मीन्स जेलसी, हेट्रेड एंड एनिमोसिटी। अब आप देख लीजिए कि क्या होता है। ऑफिसेज में जेलसी होती है, लेग पुलिंग होती है। अच्छा, हेट्रेड कि उस कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति पास आके बैठ जाए तो क्या, तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे पास बैठ क्यों गया। और नफरत, घृणा, तो ये चीज़ें क्यों आई? क्योंकि हमने बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो बॉडी कॉन्शियस में आप कंपैरिजन भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो आज हम सारा समाज इसी बात से सफ़र कर रहा है, वी आर बॉडी कॉन्शियस। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग पढ़ो, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है उसमें? वांटेड कौन? आईटी वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, वगैरह वगैरह, डॉक्टर, ये वो जो पेइंग प्रोफेशन है। एक में भी ये नहीं लिखा होता वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग। अब सौदा हो रहा है लाइफ पार्टनर का और मांग रहे हैं हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्या हो गया फिर? बॉडी कॉन्शियस हुए। और रिजल्ट उसका आप देख रहे हैं कि भारत में 100 साल पहले डिवोर्स को पाप गिना जाता था। मैरिज वाज ए सैक्रामेंट, व्हाट इज टुडे? देयरफॉर अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव क्यों। ये 5 बातें आपको बताऊंगा, उसको आप नोट कर लें जिस कारण हम धोखे में हैं। पहली बात, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। ये पक्का नोट कर लीजिए, ये सिर्फ आपको ब्रह्मा कुमारी जी बताएंगी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? हाँ, ये जो बल्ब जग रहा है, ये लाइट किसको दे रहा है? खुद को या हमें? ठीक है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये खुद को आराम दे रही है दूसरे को? गोडाउन कुर्सियों का भरा हुआ और नो यूटिलिटी। ये जो मेरी वॉइस को मैग्नीफाई कर रहा है, ये खुद की वॉइस को कर रहा है या दूसरे की को कर रहा है? सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ए हाउस एग्जिस्ट फॉर लिविंग पीपल। अगर किसी घर में 80 साल कोई हो ही ना, उसको कौन सा बंगला कहते हैं? रहे ही ना, ठीक है, भूत बंगला कहते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध है कि नदी अपना जल नहीं पीती, दूसरे पीते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाते, दूसरे खाते हैं। सूर्य हमको रोशनी गर्मी देता, खुद को नहीं देता। ओके, सो दिस इज वन लॉ। आज का मनुष्य ये समझता है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर मी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, वी गिव टू गेट। आपको कुछ, वैसे भी दुनिया में हम कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, कहते हैं कि नहीं कहते? तो इस नंबर 1। नंबर 2,
You cannot own anything in this world, you can only use it. ये भी आप समझ लीजिए. अगर आपके पास स्टैम्प पेपर की रजिस्ट्री भी है किसी मकान की कि ये मेरा है, इट्स ए धोखा. क्यों? आपने बहुत अच्छा बंगला बनाया, किसी को किराए पर दे दिया, 1 महीना उसने किराया दिया, उसके बाद उसने आपको कोर्ट में ले गया और आपको 5 साल हो गए उससे बंगला खाली कराने के. बंगला एंजॉय वो कर रहा है, आपको घसीट रहा है. आप फिर क्या सोचते हैं कि इससे तो अच्छा था मैं बनाता ही ना. तो बताइए, ओनरशिप का कुछ फ़ायदा हुआ? जिसने यूज़ किया उसको फ़ायदा. आपके पास 10 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है. हाउ मच इज़ योर्स? ओनली एज मच एज यू यूज़. बाकी धोखा है. इस धोखे में हम बहुत आते हैं और ये धोखा ऐसा है कि समझदार व्यक्तियों को ये धोखा ज़्यादा होता है. अगर कोई आपको कहे कि आपकी बॉडी का वेट हम 4 गुना कर देते हैं, कोई देवता आके कहे तो आप मानेंगे? यू विल लाइक योर बॉडी वेट टू बी इंक्रीज 4 times? यस और नो? नो. और कोई कह दे आपका पैसा 4 गुना कर दिया जाए तो यस. अब दोनों वजन हैं, वो बॉडी का, वो मन का, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हम यस करते हैं. इसका मतलब हम धोखे में हैं. सबसे क्लासिक एग्जाम्पल धोखे की ये है नॉलेज. आजकल व्यक्ति समझता है मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा बुरा जानता हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये स्पिरिचुअल से क्या लेना है, ये तो 18वीं सदी की चीज़ है, तो बूढ़े बाड़े सीखते हैं. नॉलेज मीन्स नोइंग राइट एंड रॉन्ग. ठीक है? और आप हर बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है. प्रॉब्लम कहाँ है कि हम जानते हुए भी राइट कर नहीं सकते, रॉन्ग को छोड़ नहीं सकते. तो नॉलेज किस काम की हुई? नॉलेज है मुझे. दुर्योधन भी यही कहता था, मुझे पता है ठीक है क्या है, पर मेरी इंक्लिनेशन नहीं है. इसलिए स्पिरिचुअलिटी मीन्स विजडम. It does not mean knowledge. सरस्वती was goddess of wisdom, not of knowledge. तो जो आज का आपका विषय है, wisdom sees only one side of the thing. और one side क्या है? Right side of the thing. wisdom वाले ने खराब देखना ही नहीं. आप बताइए, उसको कहते हैं डिवाइन विजडम, गॉडली विजडम, स्पिरिचुअल विजडम. एक व्यक्ति था, उसको किसी ने कहा भगवान की प्रार्थना कर तो भगवान तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर देगा. उसने सच्चे मन से प्रार्थना की. एक देवता आ गया, बोलो भाई. अब उसको देवता को पता है कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है. प्रार्थना तो की, मांग रहा है, तो ना नहीं करता देवता, लेकिन उसको पता होता है कि भस्मासुर भस्म ही मांगेगा. तो बोले बोलो. तो बोला मुझे लेटेस्ट मॉडल की कार चाहिए. तो देवता ने कान में कह दिया जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा. अच्छा, खुश हो गया, मेरी कार खड़ी है. उधर देखा तो पड़ोसी की 2 जल गया कि ये क्या. फिर उसने कहा मुझे फर्स्ट क्लास बंगला चाहिए, एकदम लेटेस्ट. बंगला भी दिख गया, पड़ोसी के 2. उसने कहा ये तो, उसको खुशी होने के बाद गम हो गया उल्टा कि भाई ये क्या तपस्या मैंने की, ये भगवान और देवता कहाँ से आया. उसने कहा तीसरा मांगो. तो कहते हैं मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए. ये है हमारी टेंडेंसी नेगेटिविटी की. तो इसलिए विजडम मीन्स ओनली सीइंग राइट. खराब है पर आपने नहीं देखना. जो हम कहते हैं ना, जो कबीरा तेरी झोपड़ी कहते हैं कि नहीं, कि जो करेगा सो पाएगा, मुझे अपना देखना है. एक रैग पिकर भी हीप ऑफ रबिश में
ये देखता है वो डब्बा मेरे काम का है। तो हम तो समझदार इंसान हैं, तो इसलिए फार्मूला क्या है कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मुझे अपनी उस ओरिजिनल नेचर को कायम रखना है और बढ़ाना है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आप देंगे आपकी बढ़ेंगी, और दुनिया की कोई चीज़ दोगे तो आपकी घटेगी। कंबल दोगे तो आपका एक कंबल कम हो जाएगा। लेकिन एक तो है ज्ञान, आप किसी को ज्ञान सुनाओगे तो आपका घट जाएगा क्या? नहीं। और इसीलिए हम ओपनिंग सेरेमनी में बत्ती जगाते हैं। हम कहते हैं जी इंडिया का ट्रेडिशन है लाइटिंग सेरेमनी। व्हाट डज इट मीन? एक कैंडल से आप सारी जलाओगे आपकी कायम रहेगी। दूसरा खुशी, आप खुशी को दोगे आपकी खुशी घट जाएगी या बढ़ेगी? तो इसी प्रकार से बेसिक बात यह है कि हम अपने मन के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प रचे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा, काला कोयला हो, आपने हीरा ही समझना है। आपको उससे कोई क्योंकि आपके मन में जो आएगा वो तो आपकी इनपुट हो गई ना। आपने अच्छा भले आप साफ हैं, आपके घर में कोई कूड़ा फेंक जाए तो आपके मन में, मन मंदिर में दूसरे की कमज़ोरी आ गई तो आप किसका मन तो खराब हो गया। गलती वो कर रहा है, चोर है, कुछ भी है, पर मैंने उसको ना तो मैं उसको सुधार सकता हूँ ना मेरा कोई फ़ायदा है। इसलिए शुभ चिंतन और शुभ चिंतक थॉट में ही मुझे देखना चाहिए कि जा तेरा भी भला हो। हम प्रेयर करते हैं, वहाँ जाके गंगा में कहते हैं प्राणियों का भला हो, उसका कल्याण हो, उसका, वो थ्योरेटिकली करते हैं। ब्रह्मा कुमारी यही करती है और कुछ नहीं, कि भाई किसी का भला हो जाए। अच्छा हो जाएगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, शुभ भावना और शुभ कामना, ये फार्मूला है। अगर ये आप धारण कर लेंगे तो आपकी लाइफ सदा खुश रहेगी। हम कहते थे जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, कहते थे ना, तुझको फूल के फूल है उसको है तरसूल। इसके पीछे राज है। कांटा बोएगा तो तरसूल लगेंगे, फूल बोएगा तो तेरे को तो फूल हैं, वो कुछ भी करे। तो दिस इज द फॉर्मूला। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन। इससे आपका सारा सिस्टम ये तब हो सकेगा अगर आप अपने आप को सोल मानेंगे कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और इसको स्टेबल रखने के लिए गॉड को याद करते हैं, क्योंकि गॉड में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे आप किसी को फ़ोन करोगे तो जिस तरह का बात करोगे वैसा ही होगा। नहीं, किसी से आपने लोन वापस लेना है, आप कहोगे पैसे देता है कि नहीं, वो गिड़गिड़ाएगा, नहीं जी सर मैं अभी देता हूँ। छुट्टी मांगेगा तो कहेगा सर मुझे तू रोज़ छुट्टी लेता रहता है। इसी प्रकार से आपका कम्युनिकेशन गॉड से होगा, तो वो तो गुणों के सागर हैं, वो शुभ ही शुभ करते हैं। तो हम सब के घरों के बाहर एक हम लोग बनाते भी हैं, शुभम लाभम एक बनाते हैं ना। अच्छा, पर वो लाभम लोभम हो जाता है थोड़ा सा, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अगर बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो 5 वीकनेसेस हमारे अंदर आ जाती हैं पक्की। ईगो, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड एंड लस्ट, ये हमारे दुश्मन हैं। गीता में भी यही लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारी इसी को छुड़वाती है, आपके सब रोग छूट जाते हैं। लेकिन इनका रूट कॉज बॉडी कॉन्शियस है, गलत आइडेंटिटी कि मैं शरीर हूँ मैं आत्मा। ठीक है, ओम शांति। हम सब भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। जो फंडामेंटल चेंज हमें लाना है उसकी इंस्पिरेशन आपने दी, तो करतल ध्वनि से दोबारा भाई साहब का अभिनंदन और शुक्रिया। अभी हमारे बीच आशा दीदी बैठे हैं, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपने पूरा डायलॉग सुना, ऑब्ज़र्व किया, तो आप
इस डायलॉग के कंक्लूजन में अपने विचार व्यक्त करेंगे कि हमें इस डायलॉग को आगे एक प्रैक्टिकल दिशा कैसे देनी है। आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। और अधिक न कहकर जो कंसर्न्स कुछ ने एक्सप्रेस किए, उन सब चीज़ों को भी ध्यान पर रखते हुए जो डायलॉग का आपका टॉपिक है, क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज फॉर पॉजिटिव चेंज, क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन क्रिएट कर सकता है? Circumstances? No. To an extent, yes. But who will do it? Who will do it? Who will bell the cat? मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाती हूँ। यूरोप ट्रैवल करते हुए, आज से कोई 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं स्कॉटलैंड पहुंची, वहां उन्होंने एक टॉपिक जो मेरे लिए रखा था, वो था चेंज हु मी, चेंज हु मी। आप मुझे चाहते हैं कि मैं चेंज हो जाऊं। सच्चाई की बात क्या है? हमें चेंज होना है। तो पॉसिबिलिटी क्रिएट करने वाला कौन हो गया? मैं हो गई। 3-4 मुख्य बातें जो भाई साहब ने बताई हैं, ये हमारा सॉलिड बेस है लाइफ का, जिसको आप जीवन की फिलॉसफी समझ सकते हैं। ये हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज बहुत शॉर्ट में बता रही, क्योंकि वहां सेशन भी है आपका, वो है ओपन माइंडेडनेस। अगर मैं पॉसिबिलिटी चाहती हूँ और पॉजिटिव चेंज चाहती हूँ, अगर मेरा माइंड ओपन नहीं है, बंद है, आप कौन सी चीज स्वीकार करेंगे? जो भाई साहब ने कहा ईगो, तो वो प्रेजेंट रहेगा, आई बी रिजेक्टिंग एवरीथिंग, और माइंड ओपन होगा, एक्सेप्टेंस होगी। और ये जो चीज है वो कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कहीं से भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस के गुण को डेवलप करना। दूसरा, रिस्पेक्ट। दूसरों के आइडियाज को रिस्पेक्ट देना। छोटे से बच्चे से भी हम लोग सीख लेते हैं। एक जगह शरारती बच्चे ने सी बीच पे, फादर उसको लेके गए स्कूटर पर, और स्टेपनी चेंज करनी थी। उन्होंने चेंज करने के लिए जब सारे स्क्रूज निकाले खत्म, तो बच्चे ने शरारत से उठा करके एक समुद्र में फेंक दिया। स्कूटर कैसे जाएगा? फादर बहुत परेशान। बच्चा इनोसेंटली कहता है, पापा क्या हम 2 स्क्रू से नहीं जा सकते? फादर का, जा तो सकते हैं, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो जितना ओपन माइंड है, एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आइडियाज है, और उसके क्या है कि जब हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं ना, तो मैं अपनी ही उसमें फंसी रहती हूँ। इसलिए आजकल एक कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, और
चौथी चीज जो मैं कहूँगी, जो आईटी फील्ड में जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें काम में। पॉजिटिव चेंज चाहिए तो कुछ सद्गुणों से ही आएगा। Guided missiles in misguided hands. This is what Justice Krishna used to say. चीज अच्छी है लेकिन मिसगाइडेड पीपल के हाथ में है। इन चीज़ों पर थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, ओपननेस होती है, तो चेंज इनिशिएट करने में भी हम सहयोग देते हैं। एक दूसरे से कोऑपरेट करना, to build upon others' ideas. There are two words. One is dialogue, the other is conversation. In dialogue, what are we doing? We have our own attitude and then we are discussing. In conversation, what we are doing? We are building upon each other. So this way. इससे हम पॉजिटिव चेंज को इनिशिएट भी कर सकते हैं, स्प्रेड भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। और हमें तो विश्वास है क्योंकि ये कार्य परिवर्तन का परमात्मा का है और परमात्मा तो पॉजिटिव ही सब कुछ करते हैं। वो दिन दूर नहीं जो आप सबके मन में आज जो मैं शब्द सुन रही थी, विश्व गुरु भारत विश्व गुरु बने। गुरु का अर्थ पता है क्या है? गुरु अंधकार को मिटाने वाला, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, उसको कहते गुरु। तो अंधकार कौन सा हुआ? वो आपको बताया गया है, उसको मिटाना है। ठीक है, उसके लिए मेडिटेशन के लिए थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए। ये इस डायलॉग से अपने लिए कुछ लेकर के जाएं। What am I taking for myself? औरों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने उसके लिए, उसको छोड़ दीजिए। मैं अपने लिए क्या लेके जा रहा हूं? इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं। और आप आए हैं, आगे भी आते रहें और हम मिलजुल करके कुछ आपकी ओर से, तकनीकी आपकी ओर से, आध्यात्म वाली तकनीकी, हाँ, स्पिरिचुअलाइज्ड टेक्नोलॉजी वो आपकी ओर से, और यहाँ से बहनों की ओर से भी आध्यात्मिकता, दोनों मिल करके परिवर्तन करेंगे। ओम शांति। आप जिस घर में आए हैं भगवान का घर है, तो आप सबको अभी गॉडली गिफ्ट और ब्लेसिंग्स दी जाएंगी।